Good morning, students. Welcome to your maths class. So, students, in today's maths class, we are going to solve the remaining problems from the exercise 10.1. In last class, we have completed till the question number 11. Those were the word problems based on addition. Now, in today's class, we are going to do the word problems which are based on subtraction. Okay, so in today's class we are going to complete the problems onwards 11. Those are 12, 13, 14, 15 and 16. So today I am going to solve question number 13, 14 and question number 15 from your exercise 10.1, and I want remaining problems you to solve in your homework. So we'll start with the very first problem from the exercise 10.1, that is question number 13. So I'll read the question first. A vegetable seller had 23 kg tomatoes. He sold 20 kg 200 gram to the customers. How much tomatoes are left with him? So what they have mentioned in this question is, there is one vegetable seller who had initially 23 kgs of tomatoes with him in his shop. Then he sold out of those 23 kg 20 kg 200 gram to the customers. Now they are asking how much tomatoes are left with him. आफ्टर सेलिंग द टमाटोज उसके पास कितने टमाटोज बचे. एक वेजिटेबल सेलर था, सब्ज़ी बेचने वाला था, जिसके पास पहले से ही 23 kgs टमाटोज थे. फिर उस 23 kg में से उसने कितने टमाटोज बेचे हैं? उसने जो टमाटोज बेचे हैं उनका वेट है 20 kg 200 ग्राम. सो ये जो 23 kg थे उसमें से उसने कितने टमाटोज बेचे? उसमें से उसने 20 kg 200 grams ऑफ टमाटोज ही हैव सोल्ड. नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड हाउ मच टमाटोज आर लेफ्ट विथ हिम. तो उन्होंने पूछा है हमें कि हमें पता करना है कि उसके पास अभी कितने टमाटोज बचे हैं बेचने के बाद. कस्टमर्स को टमाटोज बेचने के बाद अब उसके पास कितने टमाटोज नीचे बच गए हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ टमाटोज दैट इज लेफ्ट विद द वेजिटेबल सेलर आफ्टर सेलिंग द टमाटोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डाटा गिवन. जो क्वेश्चंस में क्या क्या डाटा दिया है हमें वो पहले लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो इनिशियल वेट of tomatoes. So initially how many kilograms of tomatoes were there in his vegetable shop? जो vegetable seller था उसके पास पहले से कितने tomatoes थे? What was the weight of the tomatoes which were there in his shop? Initially weight of tomatoes is equal to 23 kg. इतने kg tomatoes उसके shop में पहले से ही थे. Then what is this 20 kg 200 gram? This is the weight of the tomatoes sold, है ना. So write down weight of tomatoes sold is equal to 20 kg 200 gram. So this is the initial weight of tomatoes which he had before selling. ये जो weight है 23 kg ये कस्टमर्स को टमाटोज बेचने के पहले का वेट है. एंड दिस इज़ द वेट ऑफ टमाटोज सोल्ड. ये वेट है जितने किलो के टमाटोज उसने बेचे हैं. Now what they are asking us to find? They are asking us to find weight of tomatoes left with vegetable seller. So weight of tomatoes left with vegetable seller is equal to question mark. उन्होंने हमें पूछा है कि हमको ढूंढना है कि कितने kg टमाटोज अब वेजिटेबल सेलर के पास बचे हैं टमाटोज बेचने के बाद. So मैंने ये वर्ड्स में भी लिखा है. To find weight of tomatoes left with vegetable seller after selling the tomatoes to customer, we have to subtract weight of tomatoes sold from the weight of tomatoes which vegetable seller had initially with him. So to find out the weight of tomatoes left with the vegetable seller after selling the tomatoes, what we need to do? We need to do the subtraction. अगर हमें ढूंढना है कि वेजिटेबल सेलर के पास कितने किलोग्राम्स के टमाटो बचे हैं टमाटोज बेचने के बाद, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन किससे
के साथ करना पड़ेगा। पहले तो हमें इनिशियल वेट ऑफ टमाटोज़ पता है, तो जो पहले वाला वेट है टमाटोज़ का उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितने केजीज़ के टमाटोज़ उसने बेचे हैं, जितने वेट के टमाटोज़ उसने बेचे हैं वो हमें जो पहले से ही उसके पास टमाटोज़ थे इनिशियल वेट ऑफ टमाटोज़ से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ टमाटोज़ विच आर सोल्ड। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग। Weight of tomatoes left with vegetable seller is equal to initial weight of tomatoes which we know the initial weight of tomatoes that is equal to 23 kg minus weight of tomatoes sold and we also know the weight of tomatoes sold। कितने किलोग्राम्स के टमाटोज बेचे थे, इतने किलोग्राम्स के उसने टमाटोज कस्टमर्स को बेचे थे। सो ऑब्वियसली अगर उसके पास पहले से 23 किलोग्राम के टमाटोज है और उसमें से इतने किलोग्राम्स के टमाटोज उसने बेच दिए यानी लोगों को दे दिए, तो इतने किलोग्राम्स के टमाटोज क्या हो गए उसके शॉप में से, इतने वेट के टमाटोज उसके शॉप में से कम हो गए यानी चले गए उसके शॉप में से। तो पर पहले ये जो टमाटोज थे ये इसमें से निकाल के दिए हैं, तो 23 केजी में से इतने किलोग्राम्स के टमाटोज क्या हो गए हैं हमारे, कम हो गए हैं। दैट इज़ वाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 20 kg 200 grams फ्रॉम 23 kg। तो इसीलिए हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है इन दो नंबर्स की, 23 kg माइनस 20 kg 200 ग्राम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So weight of tomatoes left with vegetable seller is equal to 23 kg which is the initial weight of tomatoes minus 20 kg 200 gram which is the weight of tomatoes sold. Now do the subtraction. Write the numbers in the columns. So kgs kilograms की जगह kilograms का weight लिखो, grams की जगह grams का weight लिखो। So 23 kilograms है, उसमें सिर्फ केजी वाला वेट है, ग्राम्स वाला वेट नहीं है। दैट इज़ वाई विल राइट 000 यहाँ पे। नेक्स्ट माइनस 20 kg 200 ग्राम। सो 20 केजीज़ के नीचे लिखो और 200 ग्राम्स के नीचे लिखो। सो ग्राम्स के नीचे 200 लिखा है मैंने, केजीज़ के नीचे 20 लिखा है। नाउ डू दी सब्ट्रैक्शन। 0 - 0 0, 0 - 0 0। नाउ 0 - 2 you can't do, you need the borrow. So take borrow from the next digit. So 3 - 1 it will become 2. 3 will become 2. Now this 0 will become 10. 10 - 2 is 8. 2 - 0 is 2 and 2 - 2 is 0. Now we have got the weight of tomatoes left with the वेजिटेबल सेलर दिस मच। सो जो केजीज़ के अंडर नंबर्स है उसके लिए यूनिट यूज़ करना है केजीज़, और जो ग्राम्स के अंडर आया है नंबर उसके लिए यूनिट यूज़ करना है ग्राम्स। सो दिस 2 is 2 kg and this 800 is grams. So weight of tomatoes left with vegetable seller is 2 kg 800 gram. Okay, so this is the weight of tomatoes left with the vegetable seller after selling the tomatoes. कितना आया ये 2 kgs. This is under the kilograms का column, that is why it is 2 kgs and 800 grams. Now next question number 14 from your same exercise 10.1. Vinita bought 30 kg atta from the market. She used 12 kg 250 grams of it. How much atta is left? Again students, try to understand what is given in the problem. So Vinita went to the market and then she bought the 30 kg atta from the market. So उसने मार्केट से टोटल कितने किलोग्राम्स का आटा खरीदा है? उसने मार्केट से टोटल 30 किलोग्राम वेट वाला आटा खरीदा है। Now out of this 30 kgs of atta she have used the 12 kg 250 gram of atta, है ना? And now they are asking us to find how much atta is left. So पहले तो आप लिखो what is given in the question. This 30 kg is what? 30 kg is the weight of atta bought from the market. So write down weight of atta bought is equal to 30 kg. मार्केट से वो कितना आटा लेके आई थी? मार्केट से वो 30 kg of आटा लेके आई थी। तो weight of atta bought is equal to 30 kg. Now this 12 kg 250 gram is what? It is the weight of atta used. So write down weight of atta used is equal to 12 kg 250 grams.
Now next, what they are asking us to find? They are asking us to find how much atta is left. So weight of atta left is equal to question mark. नाउ हमको पता है कि यहाँ पे क्या करना है. देखो पहले एनालाइज करो क्या करना है. पहले तो वो मार्केट गई, उसने 30 kg आटा यूज़ किया और इसी 30 kg में से उसने कितना यूज़ किया है? उसने 12 kg 250 ग्राम्स ऑफ आटा यूज़ किया है. दैट मीन्स ये जो 12 kg 250 ग्राम्स ऑफ आटा है ये क्या हो गया है? ये कम हो गया है. किस में से? इसमें से. ये जो क्वांटिटी है इनिशियल वेट ऑफ आटा है उसमें से इतने kgs ऑफ आटा शी हैव यूज्ड, मीन्स दिस मच ऑफ आटा इज लेस फ्रॉम दिस आटा. एंड जब ये लेस कर देंगे इस वेट से 30 kg से, अगर ये वेट हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अभी उसके पास कितना आटा नीचे बचा है. सो टू फाइंड वेट ऑफ आटा लेफ्ट we have to subtract weight of atta used from the weight of atta bought. पक्का. तो टू फाइंड द वेट ऑफ आटा लेफ्ट मीन्स कितना आटा उसके पास बचा है उसका वेट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले जो उसने आटा कंज्यूम किया है, जितना आटा उसने यूज़ किया है उतना आटे का वेट हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. किसमें से? जितना आटा उसने मार्केट से ख़रीद के लेके आई है उसमें से हमें आटा जितना यूज़ किया है उसका वेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सो हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ आटा यूज्ड फ्रॉम द वेट ऑफ आटा बॉट. सो राइट डाउन वेट ऑफ आटा लेफ्ट इज इक्वल टू, वेट ऑफ आटा लेफ्ट मीन्स कितना आटा अभी उसके पास बचा है, इज इक्वल टू वेट ऑफ आटा बॉट माइनस weight of atta used. Now you know both the quantities. Weight of atta bought is this much and weight of atta used is this much. So write down kgs और grams के नीचे appropriately weights लिख लो. So 30 kg is the weight of atta bought. So kgs के नीचे 30 लिखेंगे, ग्राम्स के नीचे 00 लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 30 kg है, ग्राम्स में कुछ वेट नहीं है इसलिए सारा ग्राम्स में 000 लिख देंगे. एंड वेट ऑफ आटा यूज्ड कितना है तो वो माइनस करेंगे. नाउ वेट ऑफ आटा यूज्ड इज हाउ मच? 20 kgs 200 ग्राम. सो हम करेंगे उसको माइनस 23 kgs में से. सो 23 kg 00 ग्राम्स माइनस 20 kgs 200 ग्राम्स. तो 20 को kgs के नीचे लिखेंगे, ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे लिखेंगे. 200 लिखेंगे ग्राम्स में. 2 विल बी एट 100s प्लेस, 0 विल बी एट 10s प्लेस एंड 0 विल बी एट 1s प्लेस. नाउ डू दी सब्ट्रैक्शन. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस सॉरी हाँ. सो 30 kgs में से माइनस करना है 12 kg 250 ग्राम्स. सो 30 माइनस 12 kgs 250 ग्राम्स. सो 12 को kgs के नीचे लिखेंगे और 250 ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे लिखेंगे. सो 2 विल बी एट 100 प्लेस, 5 विल बी एट 10s प्लेस, 0 विल बी एट 1s प्लेस एंड डू द सब्ट्रैक्शन. 0 माइनस 0 0, 0 minus 5 you can't do, so you need to borrow. You have to take from next digit. This is also 0, this is also 0, then we'll go to 3, we'll take borrow from 3, so 3 minus 1 it is 2, so write 2, cut 3, write 2, then this 0 will become 10, but we need to take borrow also, so this 10 will become 9, so write cut this 10 and write 9, then this 0 will become 10, cut this 10 and write 9 because we are taking the borrow, and give this borrow to this 0. Now this 0 will become 10, so 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 9 minus 2 is 7, 2 minus 1 is 1. Weight of atta, now this much we got in the answer. So what is the answer? kg वाले को kg unit दो, grams वाले को gram unit दो. 17 is kg, 750 is grams. So weight of atta left is 17 kg 750 gram. 17 kg 750 gram is the weight of atta left. Now the last problem from this exercise, question number 15. So question number 15, I will read the question first. Sunita gained 7 kg 500 gram
weight. What was her weight earlier if she weighs 50 kg 200 grams now? So Sunita has gained some weight and the weight gained by Sunita is equal to 7 kg 500 ग्राम. ये जो सुनीता है इसका वज़न बढ़ा है. गेन मतलब गेन करना मतलब वज़न बढ़ाना. उसका वज़न बढ़ा है. कितने केजी से उसका वज़न बढ़ा है? उसका वज़न 7 किलोग्राम्स 500 ग्राम से बढ़ा है. 7 kg 500 ग्राम से उसका वज़न बढ़ा है. नाउ उन्होंने पूछा है हमें कि उसका पहले वाला वेट कितना था. उसने इतना तो अभी बढ़ाया है वेट, पर उसका उन्होंने हमें पूछा है कि उसका पहले का वेट कितना होगा अगर उसका अभी का वेट 50 kg 200 ग्राम है. ये जो 50 kg 200 ग्राम का वेट है वो उसका अभी का वेट है जब उसने वेट गेन कर रखा है. 50 kg 200 ग्राम इज़ हर करंट वेट विच शी हैज़ गेन्ड. Now they are asking us to find her earlier weight and she has gained the weight by 7 kgs 500 grams. So to find the earlier weight of Sunita, what we need to do? She had gained the weight, है ना. So जो उसका वेट गेन हुआ है वो कितने केजीज से हुआ है? 7 kg 500 ग्राम से उसका वेट बढ़ा. तो ऑब्वियसली उसका जो प्रीवियस वेट है, उसका जो अर्लियर वेट है वो इस वेट से कितने से कम होगा? 7 kg 500 ग्राम उसने बढ़ाया है ना. अगर हम ये बढ़ा हुआ वेट, जितना वेट उसने गेन किया है उतना वेट हम उसके अभी के वेट से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट हर अर्लियर वेट. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. Write down the data given. Weight gained by Sunita is equal to 7 kg 500 grams. Second, current weight of Sunita. इतना वेट उसने बढ़ाया है तो इट इज़ वेट गेन्ड. नाउ करंट वेट ऑफ सुनीता. व्हाट इज़ हर करंट वेट आफ्टर गेनिंग द वेट? आफ्टर गेनिंग द वेट हर वेट इज़ 50 kg 200 ग्राम. सो करंट वेट ऑफ सुनीता इज इक्वल टू 50 kg 200 ग्राम एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. इट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. टू फाइंड अर्लियर वेट ऑफ सुनीता वी हैव टू सबट्रैक्ट वेट गेन्ड बाय सुनीता फ्रॉम हर करंट वेट. अगर हम उसके करंट वेट से जो अभी बढ़ाया है उसने वेट, बढ़ाया हुआ है वेट में से जितना वेट उसने बढ़ाया है, जो उसका करंट वेट है उसमें से अगर हमने उसका जितना वेट बढ़ा है मीन्स द वेट विच शी हैज़ गेन्ड वी सबट्रैक्ट फ्रॉम हर करंट वेट, देन विल गेट हर अर्लियर वेट. ओके. So earlier weight of Sunita is equal to current weight minus weight gained. To find earlier weight of Sunita, we need to subtract the weight gained by Sunita from her current weight. So डू दी सब्ट्रैक्शंस. केजीज के नीचे केजीज वाली लिखो वेट्स और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स वाले लिखो. सो पहले करंट वेट कितना है उसका? 50 kg 200 ग्राम. सो 50 को केजीज के नीचे लिखेंगे, 200 ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे लिखेंगे. माइनस कितना करना है? वेट गेन्ड. कितना वेट उसने गेन किया? 7 kg 500 ग्राम. सो 7 को केजीज के नीचे लिखेंगे, 500 ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे लिखेंगे. सो दिस इज 7. सो राइट इट एट प्रॉपर प्लेस. 7 इज सिंगल डिजिट नंबर मीन्स वो जाएगा वंस प्लेस के नीचे. यहाँ पे नहीं लिखना है 7 लिखना है वंस प्लेस के नीचे. सो केजीज का वंस प्लेस के नीचे यहाँ पे है 0, यहाँ पे आएगा 7 और 500 जाएगा ग्राम्स के कॉलम्स में. तो 500 भी वैसे ही 3 डिजिट नंबर्स में लिखना है. 0 विल बी एट वंस प्लेस, 0 विल बी एट टेंस प्लेस, 5 विल बी एट हंड्रेड्स प्लेस. नाउ डू 50 kilograms 200 grams minus 7 kilograms 500 grams. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0. 2 minus 5 you can't do, you need to take borrow for this 2. So we'll take borrow from the next digit. This is nothing but the 0, so we'll go to the next digit. This is 5. We'll take borrow from 5. 5 minus 1, it will become 4. Cut 5 and write 4. Now next 0 will become 10, but we are again taking borrow from this 10. So 10 को कट करो और 10 minus 1 आएगा 9. 9 लिखो यहाँ पे और now give this borrow to this number 2. So 2 will become borrow के बाद 1 to 12. Now 12 minus 5 is 7. 9 minus 7 is 2. 4 minus 0 is 4.
So this much is the weight which she had earlier. So 42 किसके नीचे है, kgs के नीचे, इसलिए यहाँ पे यूनिट आएगा kgs. 700 किसके नीचे आया है, ग्राम्स के नीचे आया है, इसलिए यहाँ पे यूनिट आएगा ग्राम्स. So earlier weight of Sunita was 42 kg 700 grams. So in this way we have completed with the exercise 10.1. and if you have any doubts, any difficulties with any problem from this exercise, you can ask me anytime. Till then, thank you. Have a good day.